Welcome back to the DP World Dressing Room. I'm Fakhri Alam. You're watching 10 Sports. Our continued coverage of the ICC Champions Trophy. News out of Gaddafi Stadium, Lahore. It is the Black Caps heading to the finals. Big congratulations to Kiwi fans around the world. And with me in the DP World Dressing Room, I've got Nikhil Chopra, Waqar Younis, Wasim Akram, and the great Ajay Jadeja. And we're talking about the game. How good was Glenn Phillips? How good was Glenn Phillips again? But an unusual thing I saw. Do you mean in batting or fielding or bowling? In everything. He's like just in everything. He's just unstoppable, man. You know, but an unusual thing I saw today. वो एक उसके हाथ से लग के बाहर निकला बॉल आज एक. Oh my God. Yeah, which was like you couldn't believe it that Glenn Phillips would let go or something like that. I think this knock really changed the game Yeah. because Waqar earlier did mention there was a period where they were stuck a little. You know, it wasn't moving on. But once he came in, he just, you know, took the bowling apart. And not just bowling, I mean, he runs are so hard that he puts pressure on even on his partner. And the reason why they got to that 360, I think, was this knock. Yes, it was set up by Williamson and Rachin Ravindra, but this impetus at the end was... उसके पार्टनर ने ये नहीं कह दिया यार आहिस्ता नास में थक गए फील्डिंग भी, you know, take it easy. बैटिंग मुकाई, फील्डिंग कर ली, फील्डिंग मुकाई, बॉलिंग कर ली. आई थिंक वो जब मैं बात कर रहा था ना, अभी बीच के 4-5 ओवर अच्छे हुए थे. उस टाइम इन्होंने ना स्लोअर वन शुरू किए थे, तो उनको नहीं समझ आई. फिर उन्होंने चेंज नहीं किया. जब उनको समझ आई है ना, तो उनको थोड़ा बदलना चाहिए था. रिवर्स हो रहा था, कुछ नई चीज करते, कोई एंगल्स बनाते, कुछ और यॉर्कर्स आते. उन्होंने कहा नहीं ये चल रहे हैं, ये चलन दो. And then फिर फिलिप्स चल गया. Oh, Phillips चल गया. How about South Africa? They've qualified for the 11, 11 दफा सेमीफाइनल्स में या नॉकआउट्स में for ICC. 9 दफा हारे हैं, 1 दफा जीते हैं 98 में और 1 टाई मैच हुआ है. This definitely सेमीफाइनल में टाई हुआ. But इस बार नहीं. Let's just take a look at this graphic. इस बार yeah. Okay, so टाई हो गया था सेमीफाइनल, तो फिर उसके बाद फाइनल में गए थे, नहीं गए थे, क्या हुआ? नहीं, बाहर हो गए थे ना. टाई जीत के तुम्हारे को आया था. This is the New Zealand recent success story. Look, they've been the finalists, they've been the Super 8s, they've been semi-finalists, finalists. I mean, look at that. This team has been very, very consistent. Quietly, the Kiwis have been very, very consistent in all their performances. And right from day one, we've been saying this is one of those sides, very process-driven sides. Yeah. Look, and they're ready to make changes as and when needed as well. Look, those are in 2019 World Cup finalists, 2021 T20 World Cup finalists, 2022 semi-finalists for the T20 World Cup. Then again 223 semi-finalists for World Cup. It's just remarkable. Wasim, they're just very remarkable is a very mild word. Yeah, absolutely, I agree with you. Unbelievable. I mean, New Zealand is a country of 5.5 million people, half the population of Lahore. Yes. And yet, they produced one of the top cricketing team apart from the Black Caps. I'm talking about rugby team, best in the world. So somebody has to should follow their formula. वो करते क्या हैं, उनके systems क्या हैं, and everything, because this is something this is unheard of. I भाई आपने शो में ना एक लाइन बोली थी. Yeah. वो साउथ अफ्रीका से चेंज करके ना न्यूजीलैंड के लिए चिपका दो. इतनी कंसिस्टेंसी वो लाइन उन्हीं के लिए बैठती है. बैठी है. You're right. The greatness वाली लाइन नहीं आज सुबह आपने बोली. हाँ, बोली That I think that was just that absolutely. इनकी is there voodoo magic on South अभी Africa आपने team? दिखाया ना. आप याद करें जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुए से ये वापस आए हैं. नहीं, 75 से 79, 83, 87 ये न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं. न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं ना. मैं ग्वाच नहीं, मेरे लगा मैं ग्वाच गया. नहीं तो इधर ही है. नहीं, ये तब से कंसिस्टेंट है. ये लोग सेमीफाइनल तक हमेशा ही पहुंचते आए हैं. और अब ये फाइनल की तरफ. और मैंने उस दिन भी आपको याद कराया था जब हमारे अगेंस्ट खेल रहे थे. ये हमको अभी हरा के गए हैं सर 3 टेस्ट मैच. हमें सबसे ज्यादा इनसे प्रॉब्लम है. राइट. अब आ रहे हैं आपके लिए. They're coming to Dubai again. यार क्यों डरा रहे हैं? Anyway, Santner, how good was Santner? Nikhil again, आपने टप्पे की बात की, उन्होंने टप्पा नहीं छोड़ा और मुसीबत डाल के रखी आज. ये देखिए जरा फिगर. रोजी रोटी जहाँ पे 360 रन बने, 360 रन चेज हो रहे, किस तरीके से क्रीज का कितनी बढ़िया खूबसूरती से वो इस्तेमाल करते हैं. क्रीज के कोने से गेंद डाला, हवा में ड्रिफ्ट देखिए, बैट्समैन बीट हुआ, डिप हुई, बहुमा मारने गए, पहली लाइन में खेले थे, गेंद डिप हुआ, टर्न हुआ. ये वो टेस्ट मैच वाली बॉल है जो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लान करता है, चाहता है कि राइट हैंड बैट्समैन जो है ना वो मिड विकेट की तरफ खेले, अगेंस्ट द स्पिन खेले. और उसके बाद क्लासन को यहाँ पे वो फंसा. आई थिंक गुड कैच. वो वैन डर डूसन वाली जो गेंद थी ना, दैट सेटअप
how Santana has been able to लेकिन bowl वो लगा consistently. जो वो बॉल था वेंड डूसर वाला, वो लगा ऐसे मुझे ऐसे लगा कि उसने अंदर तेज लाया मारा है, है। तेज मारा है, बट वो पड़ा है और हल्का सा ग्रिप किया, इनफ जिसे कहते हैं। और इसको अगर आप करीब से देखेंगे ना, एक तो क्रीज की चौड़ाई का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है अच्छा। और इस पाटे विकेट पे क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करता है। तो क्रीज की गहराई का मतलब ये है कि कितने भी आप स्पिनर्स देखें ना, उनका पैर जो है ना वो पॉपिंग क्रीज पे लैंड होता है। Yeah. ये क्या करते हैं, कुछ गेंदे बीच में से कर देगा या और पीछे से कर देगा, तो वो 22 गज का फासला थोड़ा और लंबा कर देगा ताकि गेंद हवा में रह के उसमें रेवोल्यूशंस और मिले। तो वहां तक गेंद पहुंचता है तो हवा में घूमेगा तो थोड़ी सी और वो पकड़ मिलती है। तो ये 3 डायमेंशनल की तरह इस्तेमाल करता है अपना बॉलिंग का जो उसका डब्बा रहता है। दैट्स व्हाई इट्स सो गुड। ये प्रॉब्ली वाहिद बॉलर है अभी आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जो इतना छोड़ के करता है बॉल। हाँ, हवा देते है ना, बहुत सारे जितने भी बॉलर, लेग स्पिनर को तो समझ आती है कि थोड़ा बहुत आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि रिस्ट का इस्तेमाल है। ये फिंगर स्पिनर होके ही फ्लाइट्स द बॉल, ही इज नॉट वरीड on a pitch which is very very flat and you know amazing. और रवि भी आए थे एक्चुअली, उस सवेरे मौका ही नहीं दिया फकर ने सवाल पूछने का, लेकिन मेरे को पूछना था। नहीं, क्योंकि ये जो है अक्षर पटेल को ले लें आप, इनको ले लें। पुराने जमाने में अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर क्रीज के कोने में जाता हो ना, उसकी इतनी फैटियां लगती थी, यू नो, उसको बॉलर ही नहीं गिनते थे, लोग सिलेक्ट नहीं करते थे, कहते यार ये तो वैसे ही इतनी दूर से। लेकिन अब जितने सक्सेसफुल बॉलर्स हैं वर्ल्ड में, ये एक सैंटनर, अक्षर पटेल, आप उनको देखें, वो सारे इस एंगल को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट यूज कर रहे हैं। DRS की वजह LBW। तो शायद ये कहा था ना कि तब डीने फ्रंट फुट पे लेफ्ट फुट में बात तो मैंने पूछ लिया था। तो DRS एक है, और दूसरा मुझे नहीं लगता कि अब बल्लेबाज पैरों कदमों का इस्तेमाल करते हैं बॉल के बाद। आज बहुमा आउट जो हो गए, वो निकल के गए। आपको कितने प्लेयर मिले हैं जो स्टंप हुए हैं? पूरा टूर्नामेंट खत्म होने का है, एक प्लेयर स्टंप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि निकलते ही नहीं है। आई थिंक अब जो पावर आई है ना बल्लेबाजों के हाथों में, वो खड़े खड़े छक्के मार लेते हैं, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते। क्योंकि अगर इस एंगल से गेंद कर रहा है, मैं एज ए बैट्समैन सोच रहा हूँ, अगर मैं स्टेप आउट करता हूँ तो उसकी बॉल फुल टॉस ही होगी, क्योंकि वहां से अगर विकेट पे आना है वो 4.5 फुट है। True. You know, edge of the crease to the wicket is 4.5 feet. अगर उसने विकेट पे मारनी है और मैं उसको आधे रास्ते मिल जाऊं, तो हो सकता है कि आप देखेंगे कि बल्लेबाज अब जब पैर चलाना शुरू करेंगे ज्यादा, फिर ये कोने वाले तकलीफ में आएंगे। It's one thing that you pointed out, वसीम, के बड़े काम थे इनके कैप्टन अभी पोस्ट मैच में भी वेरी काम है, बहुत एक्सप्रेशन नहीं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को। that's him as a person. No, but so was Williamson before him, also very calm, very composed always. They are very mellow captains, yes. कॉन्फिडेंस है, काम है, क्वालिफाई किया है। अब कमरों में जाके, होटल में जाके रिलैक्स करेंगे, इकट्ठे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। बट आई थिंक एज अ पर्सन ही और विलियम आर वेरी काम पीपल, और बड़ा काम इफेक्ट आता है। एक काम होता है, एक सुस्त होता है। दीज आर द काम वन।